ادا کرنے کے لیے نظر آتے ہیں۔ یہی جذبات اگر آپ کو شریعت پر عمل کرنے کے لیے نظر آتے تو آج یہ مسلمان ذلیل و رسوا دنیا میں نظر نہیں آتا۔ یہ جذبات صرف شاعروں کی نعت میں آپ کے اندر نظر آتا ہے، یہ آپ کا اندرونی جذبہ نہیں ہے، یہ روحانیت کی کیفیت نہیں ہے، یہ آپ کا صرف اپنی طبیعت اور اپنا منورنجن کے لیے آپ ان تمام جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور انہی جذبات کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ساری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آپ کو غیرت آنی چاہیے۔ یہ جذبات آپ کس کے سامنے دکھا رہے تھے؟ ایک نعت خواہ کو آپ بار بار کہہ رہے ہیں اور پڑھیے اور پڑھیے اور پڑھیے، آخر کیوں کہہ رہے تھے آپ؟ آج قاری عثمان صاحب نے کتنی محنت کے ساتھ اس جلسے کو سجایا ہے، سنوارا ہے، تب یہ جلسہ آج کامیابی کی منزل پہ اپنا سفر رواں اور دواں رکھا ہے اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی سعی کر رہا ہے، لیکن آپ تمام محنتوں پہ پانی پھیرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج پولیس والے کہہ رہے ہیں، تمہارا کردار دیکھ کے یہ پولیس والے بھی حیران ہیں کہ ہم تو سوچتے تھے کہ مسلمان بڑا سلجھا ہوا ہوتا ہے، لیکن مسلمان سلجھا ہوا نہیں، ان کا دماغ پہ جو کیڑا ہے یہ محبت رسول کا کیڑا نہیں ہے، یہ دنیا داری کا کیڑا ہے۔ اگر محبت رسول کا کیڑا ہوتا تو مصطفیٰ کا پیغام سننے کے بعد ہمارے کلیجے باہر ہو جانا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ ہم قرآن کی تلاوت سنتے ہیں مگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتا، ہمارا دل نہیں دھڑکتا، لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب مسلمان قرآن سنتا تھا تو ان کا کلیجہ پھٹ کے باہر آ جاتا تھا، لیکن آج آپ لوگ شانتی بنا کے سن رہے، اس لیے کہ حضور اسلام کا عظیم الشان اسلامی اسکالر حضرت علامہ سید امین القادری کی آمد ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ آپ اتنے جذباتی ہو رہے ہیں۔ اگر وہ عالم دین ہے، یہ اسٹیج پہ تشریف فرما سارے عالم دین ہیں، بے شک بے شک، یہ سارے علماء ہیں۔ وہ اور سی بات ہے کہ اگر وہ فضیلت نسب میں افضل ہے تو اس میں ایسے عالم ہے کہ فضیلت علم میں ان سے اعلیٰ ہے۔ بے شک۔ تو اگر قابل قدر اور قابل عظمت وہ ہے تو قابل عظمت یہ علماء کرام بھی ہیں۔ آپ پر ان کی بھی عزت آپ پر لازم ہے، ان کا بھی احترام آپ پہ لازم ہے۔ بے شک بے یہ شک۔ سب جاہل نہیں بیٹھے آپ کے سامنے، یہ سب علماء کرام بیٹھے ہیں۔ تو حضرات میں زیادہ دیر آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، آپ سنیں تھوڑی دیر، شانتی کا ماحول بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کریں۔ سارے لوگ پڑھیں، اس میں جذبات دکھائیے، پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المالک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کے اس شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یہ تمام علماء کرام تشریف فرما ہے۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اس شعر کو۔ آج یہ آپ کا عشق اور یہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا یہ جلسہ اور جھماجھم نور کی برسات ہو رہی ہے آج اس محفل نور میں، اتنا بڑا مجمع ہے۔ کیا آج یہ اس شاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹا ہوا مرتا ہوا مجمع اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دیوان گانے عشق محبت کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ اگر آپ کے یہی جذبات، آپ کا یہی کردار، آپ کی یہی سرفروشی اور سرفرازی اور آپ کا یہی جوش اور آپ کا یہی ولولہ اگر ایمانی کیفیت میں ہوتا تو انشاءاللہ آج ہماری مسجد آباد نظر آتی، ہمارے مدرسے آباد نظر آتے۔ آج اس کیف و سرور میں ڈوبی ہوئی رات میں آپ کو دل تھام کے بیٹھنا چاہیے، آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کا گنبد خضرا دل و دماغ پہ بسا کے بیٹھنا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ اے مولا
आज की इस शबे नूर में हम जो आज इस जलसे में बैठे हैं, हम तुझसे आज दुनिया मांगने नहीं आए हैं, आज तुझसे दौलत नहीं मांग रहे हैं, आज तुझसे इख्तियार नहीं मांग रहे हैं, आज तुझसे सरबत नहीं मांग रहे हैं, आज तुझसे जाहो हशमत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ए मौला इस शबे नूर में आज तुझसे वो मांग रहे हैं जो अबू बकर सिद्दीक ने मांगा था, जो उमर फारूक ने मांगा था, जो उस्मान गनी ने मांगा था, जो अली के मुर्तजा ने मांगा था, जो हजरत बिलाल ने मांगा था, जो अबू जर गिफारी ने मांगा था, जो सलमान फारसी ने मांगा था, जो इमाम आजम ने मांगा था, जो गौसे आजम ने मांगा था, जो हजरत बिलाल ने मांगा था, जो मुजद्दिद आजम इमाम मोहम्मद रज़ा ने मांगा था। अब आप कहेंगे अबसार कादरी इन मुकद्दस जमात में रसूलुल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह से क्या मांगा था, अल्लाह से क्या मांगा था, अबू बकर ने क्या मांगा, उमर फारूक ने क्या मांगा, उस्मान गनी ने क्या मांगा, अली के मुर्तजा ने क्या मांगा, हजरत बिलाल ने क्या मांगा, सुहैब रूमी ने क्या मांगा, गौसे आजम ने क्या मांगा, इमाम आजम ने क्या मांगा, इमाम मालिक ने क्या मांगा, साबिर पाक ने क्या मांगा, ख्वाजा करीम नवाज ने क्या मांगा, मखदूम सिन्ना ने क्या मांगा, हजरत नसामुद्दीन ने क्या मांगा, हजरत कुतुबुद्दीन ने क्या मांगा। तो इसका जवाब हम किसी और से नहीं बरेली के इमाम मोहम्मद रज़ा से पूछते हैं। ए इमाम मोहम्मद रज़ा फासिले बरेलवी इन मुकद्दस जमात ने अल्लाह की बारगाह में क्या मांगा था? तो इमाम मोहम्मद रज़ा की तुरबत से आपकी आवाज आ रही है कि जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुदू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफा रोज फुदू करे खुदा, किसको हो दर्द का मजा ना से दवा उठाए। तो इन मुकद्दस जमात ने दुनिया नहीं मांगा था बल्कि मांगा था तो इश्क़ मुस्तफा मांगा था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हमें इश्क़ मुस्तफा मांगना चाहिए। जब इश्क़ मुस्तफा दिल पे होगा तो नमाज पढ़ने का शौक होगा, इश्क़ मुस्तफा दिल में होगा तो अगर मालदार है तो ज़कात देने का शौक होगा। आखिर वजह क्या है कि हमारे सामने कुरान पढ़ा जाता मगर हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारे सामने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी जाती मगर हमारा दिल नहीं धड़कता, हमारे सामने सरकार का फरमान सुनाया जाता मगर हमारी आंखें नम नहीं होती। मुस्तफा है, हुजरे आयशा से निकले और आयशा फरमाती है कि सरकार चादर घसेट कर मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए। आकाए रहमत ने देखा कि मस्जिद नबवी के एक कोना में कुछ सहाबे किराम है वो हंसी कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं। नबी रहमत ने फरमाया ए सहाबा तुम क्यों हंसते हो? अभी अभी कुरान लेकर जिब्राइल अमीन आया है और अर्ज करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलम यानी लिल्लज़ीना अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालों अभी तुम्हारे लिए वो वक्त नहीं आया है कि अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल बहल जाए, अल्लाह की याद से तुम्हारा दिल मचल जाए, अभी वो वक्त नहीं आया है। इतना सुनना था कि सहाबा घुटने के बल मुस्तफा की बारगाह में खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इस हंसी का कफारा क्या है? तो आकाए रहमत ने फरमाया जितनी देर हंसे हो उतनी देर रब की बारगाह में रोया करो, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ फरमा देगा। ये कौन फरमा रहे हैं? ये मुस्तफा फरमा रहे हैं। किससे फरमा रहे हैं? सहाबा से फरमा रहे हैं। कौन सहाबा? वो सहाबा जो नबी के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, जो कुरान नबी की जबान से सुना करते थे, जो हदीस मुस्तफा की जबान से सुना करते थे, सुबह शाम जो नबी का चेहरा देखते थे, वो सहाबा है। तो नबी ने फरमाया हंसी का कफारा ये है जितनी देर तुम हंसे हो उतनी देर तुम रब की बारगाह में रो लो, यही तुम्हारी हंसी का कफारा है। हम रातों दिन हंसते हैं, रातों दिन ठट्टा और मजाक करते हैं, हम हंसी और मजाक में जिंदगी गुजारते हैं। अगर कोई दीन का काम आगे बढ़ता हुआ करता हुआ नजर आता है हम उसकी टांगे खींचते हैं। कारी उस्मान साहब ने आज जो ये काम किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि कारी उस्मान का हौसला पस्त करते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो चाहते हैं कि कारी उस्मान क्यों आगे बढ़ रहा है, क्यों जलसा कर रहा है, क्यों नबी की अजमत का तराना गाने के लिए वो शोरा को और उलमा को बुला रहे हैं। मैं कहूंगा हासिदीन को, मैं कहूंगा मुखालिफीन को कि कारी
रसूल पाक का तस्करा करने के लिए बुलाया है। उस्मान की मेहनत है, उनकी चाफशानी है, उनकी कोशिशें है, मगर तस्करा नबी का हो रहा है, जिक्र नबी का हो रहा है। किस नबी का तस्करा हो रहा है? किस नबी का इनकी हदीस सुनाई जाती है? किस पैगंबर की अजमत बयान की जाती है? उस पैगंबर की अजमत बयान की जाती है जिस पैगंबर की शान में अल्लाह ने अलहम्दुलिल्लाह अलीफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ में उतारा है, पूरा कुरान मुस्तफा की शान में उतारा है। जूदे नवाज देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा की अजमत देखनी हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा का फजलो कमाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा का हुस्न जमाल देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा का सुहदो तकवा देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा की कनात देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा का इस्तिक़रार देखना हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा जाने रहमत की सखावत देखनी हो तो कुरान में देखो, मुस्तफा का हुस्न देखना हो तो कुरान में देखो। अरे जिस मुस्तफा के चेहरे को कुरान ने कहा वक्तुहा, मुस्तफा की जुल्फों को कुरान ने कहा कि वल्लैली इज़ा सजा, मुस्तफा जब चले तो कुरान कहे सुब्हानल्लज़ी अस्रा, मुस्तफा आसमान पे जाए तो कुरान पुकारे वो नजमे इज़ा हवा, जब मुस्तफा अर्श से आगे पहुंचे तो कुरान कहे तना फता दल्ला, और जब मुस्तफा कुर्बे खास की मंजिल पे पहुंचे तो कुरान कहे फकाना काबा कौसैनी औ अदना, तो मुस्तफा की आसमान, मुस्तफा की फजली फजीलत अल्लाह का कुरान बयान करता है। तो इस कायनात में अगर खुदा के बाद सबसे बड़ा और सबसे अज़ीमुश्शान अगर कोई जात है वो ज़ाते मुस्तफा है, ज़ाते रसूलुल्लाह है। इसलिए तो आला हज़रत ने कहा कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये पैगंबर आज़म की शान है। उसी मुस्तफा की गुलामी में आ जाओ, उसी मुस्तफा जाने रहमत की इताअत को अपने दिल में बसा लो। आज दिन में जलसा हुआ, लगभग 25 से 30 शहजादियां इस्लाम की है जिनके सर पे रेताए क़र्द रखा गया। ये मेहनतकारी उस्मान ने किया है। लोगों ने उनके पाँव पे जंजीरें डालने की कोशिश की, उनके पाँव में बेड़ियां डालने की कोशिश की। उस्मान पीछे हट जाओ, जमाना खराब है। उस्मान पीछे हट जाओ, हालात अच्छे नहीं है। उस्मान पीछे हट जाओ, वक्त तुम्हारा साथ नहीं है। लेकिन कारी उस्मान के दिल में ये ख्याल था, ये उनके दिल में ये तारीफ थी कि जब मुस्तफा जाने रहमत जब इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे तो कुफ्फारे मक्का अबू तालिब के पास आए, कहा ए अबू तालिब, तुम्हारा भतीजा मोहम्मद अरबी है, वो हमारे महबूदों को बुरा भला कहते हैं, उनको रोक दो, हमारे महबूदों को बुरा भला ना कहे। अगर उसको अरब की किसी शहजादी से शादी करना है हम तैयार हैं, अगर उसको अरब की हुकूमत चाहिए हम हुकूमत देने को तैयार है। अबू तालिब ने कहा ठीक है। मुस्तफा आए और अबू तालिब कहने लगा, ए भतीजे, अभी कुफ्फारे मक्का हमारे सामने आए थे, उसने ऐसा ऐसा कहा है, तुम अपने मिशन से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हारा चचा बूढ़ा हो गया है, अब इसके अंदर ताकत नहीं है, इसके बाजू में कुव्वत नहीं है। ए मोहम्मद अरबी, तू अपने मिशन से बाज आ जा। पैगंबर आज़म के आंखों में आंसू के कतरे आ गए। नबी ये रहमत ने फरमाया, ए चचा अबू तालिब, अगर ये कुफ्फारे मक्का मेरे एक हाथ में सूरज दे दे और एक हाथ में चांद दे दे, तब भी आपका भतीजा अपने मिशन से बाज नहीं आएगा, अपने मिशन से बाज नहीं आएगा। ये मोहम्मद अरबी का पैगाम था, ये मुस्तफा जाने रहमत की शान थी। इसी तारीख को, इसी मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम को आप लोग बैठेंगे नहीं, अभी तशरीफ रखें आप लोग शोर मत मचाएं। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये खवातीन का मदरसा चला रहे हैं, ये खवातीन का मदरसा चला रहे हैं जहाँ इस्लाम की शहजादियाँ ज़ेबरे इल्म से आरास्ता हो रही है, जहाँ इस्लाम की शहजादियों को कुरान
सिखाया जाता है, हदीस पढ़ाया जाता है, इस्लाम की तारीख पढ़ाया जाता है, उनको रुकैया और ज़ैनब की कहानी सुनाई जाती है, उन्हें फातिमा की सीरत पढ़ाई जाती है, उन्हें ज़ैनब का इस्तिक़लाल पढ़ाया जाता है, उन्हें उम्मुल खैर फातिमा का ज़ुहद और तक़वा पढ़ाया जाता है, उन्हें हज़रत ज़ुलेखा की इबादत के बारे में बताया जाता है। ये खातून कोई मामूली खातून नहीं है। आज दुनिया में तो आज लोग नारा लगाते हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी की इज्जत की करने की जगह है, बेटी का वक़ार है, बेटी की इज्जत बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। वो नादान तो आज नारा लगाता है, मगर मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले कहा था, जब दुनिया ने कहा था, दुनिया के दानिश्वरों ने, किसी ने कहा था औरत शहर की पुड़िया है, किसी ने कहा था औरत काटू का बिस्तर है, किसी ने कहा था औरत जख्मों की सीज है, किसी ने कहा था औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का एक आला है। ऐसे माहौल में आज से 1400 साल पहले पैगंबर इनकलाब ने कहा था, अल्लाह ताला औरत ख्वाहिशात नफसानी बुझाने का आला नहीं है, औरत काटू का बिस्तर नहीं है, औरत जख्मों की सीज नहीं है, औरत जहर की पुड़िया नहीं है, औरत कदमों की धूल नहीं है, बल्कि औरत जन्नत का फूल है। वो औरत को जन्नत का फूल बनाने वाला कोई और नहीं, मुस्तफा जाने रहमत है, मुस्तफा जाने रहमत है। पैगंबर आज़म ने औरतों को कैसा सजाया, कैसा संवारा। आज दुनिया कहती है कि पैगंबर आज़म ने अपनी बेटी को कोई जहेज नहीं दिया था, सिर्फ एक आटे की आटा पीसने की चक्की दी थी, एक खजूर के पत्तों का गट्टा दिया था, एक तकिया दिया था, एक पानी का मशकेज़ा दिया था, एक पानी पीने के लिए मिट्टी का बर्तन दिया था, और कोई जहेज न दिया था। लोग सोचते हैं कि पैगंबर के पास तो कुछ था ही नहीं, वो देते कहां से? उनके पास माल नहीं था, उनके पास दौलत नहीं थी, उनके पास सोना और चांदी नहीं था। मैं कहूंगा नादान, मुस्तफा के पास ज़ाहिरन सोना चांदी नहीं था, वो तो रहमतुल लिल आलमीन थे। अगर मुस्तफा चाहते तो जन्नती ज़ेवरात से फातिमा को सजा देते, फातिमा के लिए सोने मंगवा सकते थे, हीरे और जवाहरात मंगवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सोने चांदी के ज़ेवरात से नहीं सजाया। हाँ हाँ सजाया था, ज़ेवरात दिया था, मगर कैसा ज़ेवर, कैसा सजाया था? पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के माथे पे सजदे का टीका दे दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के हाथों में वफा का कंगन पहना दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के पाँव में इताअत इलाही की पासे पहना दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के गले में शरीयत का माला पहना दिया था, पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा के सर पे शहर की इताअत का झूमर पहना दिया था, और सरापा कुरान की तफसीर बना के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को अली के घर भेजा था, अली के घर भेजा था। आज जरूरत है हम अपनी बेटी को इन्हीं ज़ेवरात से सजाए, इताअत इलाही के पासे देते, सर पे इताअत शोहर का झूमर पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते, हाथों में वफा का कंगन पहनाते, गले में शरीयत का माला पहनाते। जब मेरी बेटी शरीयत से मुज़य्यन होके, शरीयत के ज़ेवरात से आरास्ता होके अपने ससुराल जाएगी, और फिर अपने ससुराल में जाके सास ससुर का एहतराम करेगी, अपने शोहर की खिदमत करेगी, नमाज़ की पाबंदी करेगी, तो ऐसी बेटी के बदन से जब कोई बच्चा पैदा होगा तो अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम जरूर पैदा होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है? आज मैं कहता हूँ आपसे, कुछ लोग डरे हुए हैं, कारी उस्मान साहब को डराया जाता है, कारी उस्मान साहब आप ऐसा मत कीजिए। मैं कहूँगा सुन, जो आला हजरत वाला है वो डरता नहीं है, इसलिए कि आला हजरत वाला अपने बाप के लिए नहीं, बल्कि रसूल पाक के नाम का जलसा कराता है, रसूल पाक के नाम का जलसा कराता है, दुनियादार की तारीफ नहीं करता। किसी दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप लोग सब ये सब बैठे रहें, बड़ा मेहरबानी, आप लोग बैठे रहें इसी वजह। शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस शख्सियत का हम सबको आपको इंतजार है, उस शख्सियत की आमद है। लेकिन आप खड़े ना हो, आप बैठे रहे, वो शख्सियत स्टेज पे ही आएगी और कुर्सी खिताबत पे चलवा कर होगी। आप सामने से देखते रहेंगे, उनका दीदार करते रहेंगे, उनका बयान सुनते रहेंगे। आप अफरा तफरी का माहौल न करें, अपने आप को मुसलमान बना के रखें, अपने आप को ये समझ कर बैठे रहे कि हम रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, पैगंबर आज़म के मानने वाले हैं, सरकारे दो आलम के चाहने वाले हैं। हज़रात, उस शख्सियत की आमद है। आप लोग अफरा तफरी का माहौल न करें, आप अपनी जगह पे खड़े रहें। हुजूर सैयद अमीनुल कादरी की आमद है। आप हजरात अपनी जगह पे बैठे रहें और ये हरगिज ये बेहूदगी ना करें। कोई भी लोग गाड़ी के पास दौड़ के ना जाए, हजरत यही स्टेज पे आएंगे। मैंने पहले कहा था कि आपकी ये जहालत है, आपका ये जज्बात है कि आप ये बेहुरमती कर रहे हैं। किसी आलिम के सामने जाकर उनकी गाड़ी घेर लेना, जबरदस्ती उनकी दस्तबोसी कर लेना। रास्ता क्लियर छोड़ दे सभी हजरात, सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, रास्ता बिल्कुल क्लियर छोड़ दे, कोई भी वहां पर आगे पीछे ना हो, उनको कोई भी हाल में दिक्कत परेशानी ना हो। हजरत को आगे थे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये बेअदबी हरगिज न करें, ये